Hi students, we were discussing about the structure of antibody. तो antibody का structure हम discuss कर रहे थे, तो उसको थोड़ा discuss कर लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज. So let's start. So if you see the structure of the antibody, so it is clearly visible that, and we have already discussed that it is made up of two chains, two heavy chains and two light chain. ठीक है. सो टू हेवी चेन्स होता है और टू लाइट चेन, ये दो से दो जो चेन है उससे बनता है एंटीबॉडी. तो अगर आप देखोगे, सो दिस इज, इफ यू सी, दिस इज बेसिकली द heavy chain and this is the light chain. Okay, and this heavy chain and the heavy chains both are connected with, or both are attached with the help of the disulfide bond, and the light and the heavy chains are connected with the help of the disulfide bond. ठीक है ना? Now the important thing is that what we need to discuss is the structure. Apart from this heavy chain and the light chain, the antibody are actually having two regions. One is variable region, another one is your constant region. So variable region मतलब, see the heavy chain and light chain पहले discuss करते हैं. The antibody molecule is made up of 4 peptide chain. अब जो एंटीबॉडी होता है एक्चुअली ये बेसिकली बनता है 4 पेप्टाइड चेन से. उसमें से दो क्या है, अभी हमने बात किया, स्मॉल चेन और वी कैन कॉल इट एज लाइट चेन, एंड टू लॉन्गर दैट इज कॉल्ड हेवी चेन. ठीक है. Hence the antibody is represented as H2 and L2. हमने कल भी देखा था, इसीलिए हम एंटीबॉडी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. H2 मतलब हेवी चेन, L is H stands for heavy, L stand for light. दो हेवी चेन होगा तो लाइट होगा, तो H2 and L2. Now the heavy chain have larger number of amino acid, while the light chain has smaller number of amino acids. Okay. Now the heavy and the light chain may be of either lambda or a kappa type. There are two types of chains, this peptide chains, basically making this or helping to make the structure of antibody. It is lambda and kappa. Now next, there are two regions. तो यहाँ पे थोड़ा समझना है. जैसे आप देख सकते हो, हमने क्या बात किया कि एक होगा जो चेन जो बहुत लंबा होगा. So this one what we are discussing here, this two, these two, this one and this this one. These two are heavy chain. They are long. They are made up of maximum number of amino acids compared to the smaller one. And then this one, these two, these are light chain. Okay. Now this structure, they are connected like this. Heavy chains are connected with disulfide bond, and the heavy chain and the light chain are also connected with disulfide bond. Okay. Now if you see here, this is a Y-shaped structure, almost a Y-shaped structure. It looks like Y, and it's having binding site. And there are two regions, two different regions what we can see. One is your constant region, another one is your variable region. Okay. तो जो constant region है वो और variable region, ये दो region दोनों ही क्या आपके जो heavy chain है और जो light chain है दोनों में ही रहता है. ठीक है. So here you can see this is a light chain where we have the variable region, and this is the constant region. The same here. The same way we are having this variable region in the heavy chain, and this is the constant region. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका heavy chain है उसका जो 1/3 है, सॉरी मतलब अगर हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप देखो, this is the first part, this is second, this is third and this is fourth. तो अगर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका 1/3 जो है वो वेरिएबल होता है और बाकी का जो पूरा पार्ट है वो
कांस्टेंट रीजन होता है, लेकिन अगर आप लाइट चेन में देखोगे तो ऑलमोस्ट हाफ इज वेरिएबल रीजन एंड हाफ इज कांस्टेंट रीजन, एंड इट इज सेम हियर एज वेल बोथ द प्लेसेस। ठीक है ना। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देख सकते हो कि जो लाइट चेन है वो हेवी चेन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन दिस एरिया। ठीक है ना, बिकॉज इफ यू सी इट वेरी केयरफुली तो अब देखना कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जुड़ा हुआ है इट इज एक्चुअली वर्किंग एज ए हिंज। ठीक है, जैसे हिंज होता है ना दरवाजे पे, डोर पे हिंज होता है, हिंजेस होता है, बिल्कुल वैसा ही हिंज टाइप, हिंज के जैसे ये काम करता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डायग्राम। एंड अभी मैंने क्या बोला कि हिंज जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड है और जिसको हम हिंज रीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि a disulfide bond join a light chain with a heavy chain। हमने भी देखा लाइट चेन के साथ हेवी चेन ज्वाइन को जोड़ता है कौन? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और हेवी चेन को हेवी चेन से भी कौन जोड़ता है? वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड। नाउ two disulfide bond also link the two heavy chains, that also we know। now this part of antibody displays considerable flexibility and is also called as hinge region। इस जो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ये क्या करता है? इट इज प्रोवाइडिंग द कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी टू दैट स्ट्रक्चर, एंड इट इज आल्सो कंसिडर्ड और इट इज आल्सो नोन एज द हिंज रीजन बिकॉज ऑफ दैट it can actually move or flexible enough and working just like a hinge। Now because the antibody arm can move somewhat as the hinge region or hinge region bends, an antibody can assume a Y-shaped molecule। अब क्योंकि ये जो hinge structure है, because of that it can move easily, so that's why you can consider as a whole the entire structure as Y-shaped structure। ठीक है। Now if you see that the structure of the heavy chain, it can be divided into two parts। one is your Fab part, that is your fragment antigen binding Fab, and then second part is called fragment crystallizable। क्यों ऐसा बोलते हैं? मैंने अभी बताया आपको कि तीन पार्ट होते हैं, तो उसमें से एक पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड फैब एंड अदर टू पार्ट इज कॉल्ड fragment crystallizable। okay, so the antigen binding site bind to the specific antigen in fragment antigen binding। अभी जो पूरा जो एंटीजन ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन के साथ किस पार्ट में ज्वाइन करता है, कहां पे आगे ज्वाइन करता है? हमने वो डायग्राम में देखा था। तो बेसिकली जो फैब पार्ट है ये ऊपर वाला जो हिस्सा है फैब पार्ट, ये जाके बाइंड करता है किसके साथ? जो वेरिएबल पार्ट है जो है आपका, दैट इज गोइंग टू बाइंड विद द एंटीजन एंड दैट इज योर फैब। ठीक है, सो द फैब मींस द फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग पार्ट। ठीक है, तो ये जो है ये एंटीजन के साथ बाइंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन हम जिसे कहते हैं। तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ऐसा होता है। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, यू कैन draw this diagram as well। okay, so that was the basic understanding, or that is a diagram to understand how the antibody is actually look like, or how it actually arrange, how these chains, these heavy and light chains are arranged together to form the Y-shaped antibodies। ठीक है, और कैसे ये Y-shaped एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच होता है, तो हमने वो डिस्कस किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट the different types of antibodies, that is your immunoglobulins। So we have discussed IgA type, IgD, IgE, then IgG and IgM type, right? So हम इनके बारे में बात already कर चुके हैं। So before we move on to the next topic, I will discuss, or I will summarize all the different types of
immunoglobulin or antibodies in the form of a table. Okay, and before that, there is a small, update that you please, that you all need to uh, write down and you all need to know. देखिए कि हमने अभी इस चैप्टर में हमने पढ़ा ना कि जो आपके एंटीबॉडीज है, जो आपके डिफरेंट टाइप्स के जो एंटीबॉडीज है वो बनता कैसे है और ये कहाँ से आता है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। तो इसका एक फ्लो चार्ट आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे राइट नाउ। So you can just write down this flow chart. It will help you to remember the all the different types of the immune system along with the different types of antibodies. It will help you to remember. So this is the flow chart. So you can see the bone marrow, and from the bone marrow what we're getting, what is happening, what we're getting, that is lymphocyte precursor or stem cell. Bone marrow से आता है stem cell। उसमें से क्या होता है, थाइमस और जो आपके टी सेल्स और बी सेल्स बनते हैं। उसमें क्या होते हैं, देखो आप टी सेल्स कितने तरह के होते हैं हमने डिस्कस किया था, मेमोरी, सप्रेसर, किलर और साइटोटॉक्सिक, और टी जिसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपके किलर सेल्स है, फ्रॉम देयर वी कैन सी दैट इट सीक्रेट, किलर सेल क्या क्या सीक्रेट करता है, लिम्फो टॉक्सिन्स एंड परफोरिन्स, तो हमने डिस्कस किया था क्या क्या सीक्रेट करता है आपका किलर सेल। देन सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब हेल्पर टी सेल से आपका जो किलर सेल है वो डेवलप होता है, हमने वो भी डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट इज बी सेल। One more thing, that helper T cells secrete the cytokines. ठीक है, now the B cells they produce memory cell and plasma cell. Now plasma cell produce the antibody. तो अल्टीमेटली कौन बनाता है एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कहाँ से होता है, प्लाज्मा सेल से। कितने तरह के हैं, IgA, IgG, IgM, IgD, IgE। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड अस द ह्यूमरल इम्यूनिटी और AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो दो तरह के होते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है दैट इज डन इन दिस वे, एंड द antibody mediated immunity is done by this way. Okay, so this is very important, so you can write down the flowchart, you can pause now. So here in this table we can see that there all the different types of antibodies are there, like IgA, IgD, IgE, IgG and IgM. First you can see the structure, basically the structure, how it looks, and basically how it appear if you draw the diagram of each and every antibodies. So you can see there is a little difference in IgA and IgM. So IgA and IgM, where you can see that multiple structure of the antibodies which are interconnected with the J chains. Okay, so the same way it is happening in the IgM type, where there are multiple antibodies are connected with each other, and there also we can find a chain which is called the J chain. Now the structure, if you see the IgA especially, it is a dimer, मतलब डाई मतलब दो जो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है वो मिल के बनता है। सो इट इज, दैट्स व्हाई call it as dimer with the secretory components and J chain. बाकी IgD, IgE, IgG ये सारे मोनोमर्स होते हैं। IgM कैसा होता है, पेंटामर, आप देख के गिन सकते हो 1 2 3 4 5, 5 जो आपके मोनोमर है एंटीबॉडीज के वो मिलके बनता है, उसमें आपके क्या हमको मिलेगा, और J चेन्स भी मिलता है। Now let us talk about the percentage of the total serum antibody, मतलब जो ब्लड सीरम होता है उसमें जो एंटीबॉडी का परसेंटेज क्या होता है। IgA होता है 10 to 15%, IgD 0.2%, IgE लेस देन वो 0.1%, IgG सबसे ज्यादा होता है 80%, and IgM that is 5 to 10%. लोकेशन कहाँ कहाँ पे ये हमारे जो एंटीबॉडीज है ये कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं, कौन सा एंटीबॉडी कहाँ मिलता है, ये हम डिस्कस करेंगे। Location, if you see the location is the secretion, first one the IgA, that is secretion, that secretion is कहाँ कहाँ पे हमें मिलेगा,
टीए से मिल जाएगा सलाइवा में, म्यूकस में, इंटेस्टाइन में, कोलोस्ट्रम में, ब्लड, लिम्फ। यहाँ पे कोलोस्ट्रम क्या होता है? मदर्स मिल्क होता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जो बेबी को देते, मतलब फर्स्ट मदर्स मिल्क आफ्टर द पार्चुरेशन, after the birth of the baby or the fetus, the grown fetus, the mother is going to secrete a special type of milk that is called colostrum. Now second is IgD, ये कहाँ में मिलेगा? B cell surface, then blood, lymph यहाँ पे, then IgE, ये कहाँ मिलेगा? bound to mast and basophil cells throughout the body, blood यहाँ पे. Next IgG type, blood, lymph, intestine यहाँ पे मिलेगा. The last one IgM type, that is the pentamer. ये मिलेगा आपके ब्लड में, लिम्फ में, बी सेल सर्फेसेस में, ठीक है, एज अ मोनोमर. ना फंक्शन क्या है? फर्स्ट है IgA का फंक्शन देखते हैं. लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन इन एक्सटर्नल सिक्रीशन, टीयर्स, intestinal secretion, etc. Then IgD type, antigen recognition by B cells. Then IgE type, it is involved in the allergic reactions. Then IgG type, complement activation. And last one, this IgM type, complement activation. So both are having the same function. Now next, placental transfer. इसमें से कौन सा जो टाइप ऑफ एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लासेंटा से ट्रांसफर होके फीटस की बॉडी में जा सकता है? तो सिर्फ एक ही है, दैट इज योर IgG टाइप, व्हिच इज हैविंग द कैपेसिटी टू ट्रांसफर थ्रू द प्लासेंटल बैरियर, or through the placenta actually, sorry. Okay, now we'll talk about, and we'll go to the next topic, that is your monoclonal antibodies. Now monoclonal antibodies, that is the next topic we need to discuss. तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि जो स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडीज का वो कैसा होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है. नाउ वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को समझने के लिए हमें मींस वी नीड टू गो थ्रू दिस पॉइंट्स what we can see in the screen, and at the end I will show you a diagrammatic representation as well. So monoclonal antibody, it's a method, it's actually a process by which we are getting this monoclonal antibodies. It's a basically this is basically a artificial process developed by us human being. ठीक है, तो इसमें होता क्या है देखते हैं. तो बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम बनाते कैसे, हमें मिलता कैसे, हाउ वी प्रोड्यूस इट, व्हाट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, और मेथड वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. सो फर्स्ट स्टेप, a mouse is injected with a specific antigen that will induce antibodies against that antigen. अब देखो, अब माउस के बॉडी में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एंटीजन जो है उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं. उसके बदले में क्या होगा, माउस के बॉडी में हमें क्या देखने मिलेगा, हम क्या देख सकते हैं, द माउस दे विल प्रोड्यूस a particular antibody against that antigen, right? Now what will happen, because the antigen produced inside the mouse body, so the spleen of the mouse is removed, क्योंकि वहां पे हमें मिल जाएगा ना, जो भी एंटीबॉडी बनेगा तो वहां पे हमें मिल जाएगा. इसीलिए हम क्या करेंगे, स्प्लीन जो है माउस का वो हम रिमूव कर देंगे, and we will make a suspension from that. And now that suspension includes the B cell that produce the antibodies against the injected antigen. अब इस स्प्लीन में तो हमें बी सेल मिल जाएगा जो कि एंटीबॉडी बनाता है, एक्चुअल में जो बनाता है, बनाने में हेल्प करता है जो एंटीजन हमने इंजेक्ट किया था उसके अगेंस्ट में, है ना. नाउ द स्प्लीन आर देन मिक्स्ड विद माइलोमा सेल. ठीक है, अब ये जो स्प्लीन सेल्स है, अगर हमको पता है कि स्प्लीन सेल में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ना बी सेल जो कि एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है. तो हम क्या करेंगे, जो स्प्लीन सेल है, ठीक है, उसमें जिसमें बी सेल्स भी है, हम उसको क्या करेंगे, विल मिक्स दीज
सेल्स विथ माइलोमा सेल। माइलोमा सेल क्या होता है? कैंसरस सेल होता है, ठीक है। जो कैंसरस सेल होता है उसे हम बोलते हैं माइलोमा सेल। इसके साथ आप क्या करेंगे, स्प्लीन जो सेल्स है हमने जिसका सस्पेंशन बनाया था, देखो सस्पेंशन मतलब कुछ नहीं है, तो हम स्प्लीन को हम डिस्पर्स कर देंगे और उसमें से जो सेल्स है उसको सारा हम अलग कर देंगे और उसमें वो जो सेल्स है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, माइलोमा सेल के मिक्सचर के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, दी इससे क्या होगा जी, कि सम ऑफ दी antibody producing spleen cell of the mouse and the myeloma cell fuse to form a hybrid cell। इससे क्या होगा, जो माइलोमा सेल है और जो कि कैंसरस सेल है जो कि कंटिन्यूसली ग्रो कर सकता है, which is having capacity to continue having capacity to grow continuously or it will show continuous growth in culture। तो क्या होगा कि ये जो माइलोमा सेल है और जो स्प्लीन के सेल है वो फ्यूज हो जाएंगे और एक हाइब्रिड सेल बना देगा। अब ये जो हाइब्रिड सेल है, नाउ इट इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग कंटिन्यूअसली इन कल्चर व्हाइल प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। यहां पे थोड़ा समझना है आपको। देखो हमने अभी क्या बात किया कि माउस के बॉडी में हमने एक एंटीजन, अगर हम एंटीजन इंजेक्ट कर देंगे तो उसके अगेंस्ट में क्या कर देगा, माउस एंटीबॉडी बनाएगा। अब एंटीबॉडी बनाने के लिए तो जो सेल है जरूरी, वो कौन सा सेल है, बी सेल है। वो कहां पे मिलेगा हमें, वो स्प्लीन में मिलेगा। इसीलिए हमने क्या किया, स्प्लीन जो सेल, स्प्लीन को हमने निकाल लिया माउस के बॉडी से, उसमें से हमने क्या कर लिया, जो स्प्लीन के सेल्स है इंक्लूडिंग द बी सेल्स उसको हम निकाल लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए और उसको माइलोमा सेल के मिक्सचर के साथ रख दिया। इससे क्या होगा कि देयर आर सम सेल, नॉट ऑल, सम सेल विल फ्यूज, सम this spleen cell of the mouse and this myeloma cell will fuse and they will form a fused structure that is called hybridomes or hybridomas, ठीक है। So the mixture of the cell is placed in a selective medium that allow only the hybrid cell to grow। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हाइब्रिड सेल है उसको हम एक सिलेक्टेड मीडियम में रखेंगे जो कि हम आर्टिफिशियली बनाएंगे। उससे क्या होगा, उसमें हम मीडियम को हम ऐसे बनाएंगे ताकि सिर्फ और सिर्फ ये जो हाइब्रिड सेल है ये डेवलप करे, ये ग्रो करे, बाकी सारे सेल डेवलप या ग्रो ना करे, ठीक है। नाउ द हाइब्रिड सेल व्हिच एक्चुअली proliferate into clones are called hybridomas, ठीक है। अभी जो हाइब्रिड सेल है कल्चर में डेवलप करेगा तो उसका जो क्लोन बनाएगा, उसका जो कॉपीज बनाएगा, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडोमास, ठीक है। अभी हाइब्रिडोमास क्या करेगा, इट विल secrete or what we can say, this hybridomas are screened for the production of desired antibody। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हाइब्रिडोमा सेल को हम अलग कर लेंगे और इसी को हम अपने हिसाब से, हमें जितना जरूरत है उस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज की, हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और उससे हम जो एंटीबॉडी है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, उसको निकाल लेंगे। फाइन। Now the hybrid cell proliferate into clones called hybridomas and the hybridomas are screened for the production of desired antibody। Now the selected hybridomas are then cultured to produce large quantities of monoclonal antibodies, ठीक है, because they came from a single clone of identical cell। तो हम अभी क्या करेंगे, हम जो हाइब्रिडोमास है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और उससे हम जो हमारा डिजायर्ड एंटीबॉडी है उसको वो हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसे क्यों मोनोक्लोनल कहते हैं, देखो सिंपली एक जो हाइब्रिडोमा सेल है उसका क्लोन बना के, उसको कॉपी बना, उसका बहुत सारा कॉपी बना के हम ये एंटीबॉडी जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सिंगल एक जो हाइब्रिडोमा सेल है उसका क्लोन बनाते हैं हम पहले और वो बहुत सारे क्लोन्स का क्लोन बनाने के बाद उससे हम ये कलेक्ट करते हैं एंटीबॉडी, इसीलिए हम इसे कहते हैं the monoclonal antibodies, ठीक है। Now this method what I have discussed with you just now, this was actually the method which was described by the scientists Jenner, Kohler and Milstein in 1975। They were the scientists who discovered and who discussed the method for the first time, okay। Now this monoclonal antibodies are also it has also been used to detect the cancer at very early stage। कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी ये प्रोसेस बहुत यूजफुल है और इसको यूज किया जाता है, ठीक है।
So now we will see the diagram, so it will help us to understand in a better way. Now देखिए, so if you see the diagram, you can see that there is a cultured myeloma cells और cancerous cell. देखो हम क्या करते हैं, हमने अभी डिस्कस किया ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा फिर से देख लेते हैं. हम जो माइलोमा सेल है उसको हम कल्चर करते हैं, उसको हम कलेक्ट करके रखते हैं, उसको हम कल्चर मीडियम में उसका नंबर बहुत सारा, हम माइलोमा सेल हम उसको बना के रखते हैं. कैंसर सेल को हम कलेक्ट करते हैं कहीं से और उसको फिर हम कल्चर मीडियम में उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसका नंबर इंक्रीज करवाते हैं और उसको स्टोर करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं. ठीक है, उसी को हम बाद में यूज करने वाले हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, कोई स्पेसिफिक एंटीजन माउस के बॉडी में डाल देंगे, तो माउस क्या करेगा, उसके बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, जो कि बनाने में कौन हेल्प करेगा, स्प्लीन. और स्प्लीन में रहता है बी सेल, स्प्लीन सेल में ही रहता है बी सेल. तो उसको हम क्या करेंगे, इसका सस्पेंशन बनाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्प्लीन सेल्स, जो सेल्स में क्या है, बी सेल्स भी इंक्लूडेड है. अब ये जो स्प्लीन सेल है और माइलोमा सेल, इस दोनों को हम एक जगह पे रख देंगे, तो फिर क्या होगा, some spleen cell or B cell and these myeloma cell, they will get fused and they will form this cell that is called cell fusion. That process is called cell fusion. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड मीडियम में रखेंगे. ठीक है, so this is unfused suspension cell, then we can have unfused myeloma cell and then we have the fused hybrid cells. अब क्या हो सकता है, क्योंकि हमने अभी स्प्लीन सेल्स और माइलोमा सेल दोनों को एक जगह पे रख दिया है, तो क्या हो सकता है, हमें क्या मिलेगा, वी कैन फाइंड थ्री कैटेगरीज और थ्री टाइप्स ऑफ सेल. एक तो माइलोमा सेल हमें मिल जाएगा, हमें सिर्फ स्प्लीन सेल मिल जाएगा, और तीसरा कैटेगरी हमें क्या मिलेगा, जो कि फ्यूजन है दोनों का, वो भी हमें मिल जाएगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट इज दिस हाइब्रिड सेल. उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसको एक स्पेशल मीडियम में रखे, सिलेक्टेड मीडियम में रखे, उसका क्लोन बनाएंगे, उसको कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे. ठीक है, तो उसका नंबर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और जब नंबर इंक्रीज होगा तो उसके साथ क्या होगा, हमारा जो जितने सेल होंगे उतने ही ज्यादा हमको एंटीबॉडीज मिल जाएगा, क्योंकि हर एक सेल जो एक एंटीबॉडी बनाएगा, वैसे अगर मल्टीपल जो सेल्स है तो वो बहुत ज्यादा एंटीबॉडी हमको बना के दे देगा. सो देन वी कैन गेट एंड कलेक्ट द एंटीबॉडी फ्रॉम दैट particular mixture, and we can use for further activities, and this is called monoclonal antibodies, and this is a method by which the monoclonal antibody is obtained, right? Now monoclonal antibody का यूज क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बेसिकली हम इसको कहाँ यूज करते हैं. सी देखो, the use of monoclonal antibodies including first, they recognize several bacterial pathogens, diagnosis of pregnancy, then allergies and disease such as hepatitis, rabies. इसमें यूज होता है, cancerous cells को डिटेक्ट करने में यूज होता है. So there are multiple uses, right? Next, the antibody formation or formation of antigen antibody complex or antibody action. ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक. तो इसको समझने के लिए सो अगेन वी विल सी अ डायग्राम, या एंड वी विल डिस्कस. देखो, हमने पहले भी बात किया है कि जो एंटीजन होते हैं उसमें एपिटोप्स होते हैं, और एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स हम जिसको कहते हैं वो रहता है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल. Now, this epitopes are the components of antigens that we know. ठीक है, so यहाँ पे आप देख सकते हैं epitopes. We can see that there are epitopes are there on the cell, right? Now, each antigen carries more than one epitopes. हर एक एंटीजन, हर एक जो एंटीजन का जो है उसमें कितना epitopes हो सकता है, more than one. Now, each Y-shaped antibody molecule has at least two binding site. अब जो आपकी एंटीबॉडी होता है, जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है, एटलीस्ट इट इज हैविंग टू बाइंडिंग साइट. अभी हमने देखा ना, इसमें एटलीस्ट दो बाइंडिंग साइट तो होता ही है, इसीलिए वाई शेप्ड होता है. एंड दैट कैन अटैच टू अ स्पेसिफिक एपिटोप ऑन द एंटीजन, और ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एपिटोप के साथ ये ज्वाइन कर लेगा. नाउ एन एंटीबॉडी कैन आल्सो बाइंड टू आइडेंटिकल एपिटोप्स ऑन टू डिफरेंट सेल्स एट द सेम टाइम. ठीक है, तो जो एंटीबॉडी है ये क्या कर सकता है, इट कैन बाइंड टू आइडेंटिकल एपिटोप्स on two different cells at the same time.
ठीक है. Now the antibody can inactivate the invading agent in the in of different ways. ठीक है. तो जो एंटीबॉडी है वो क्या करता है, एंटीजन के साथ बाइंड करता है और उसको इनएक्टिवेट और इसको इनएक्टिव कर देता है. उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसके पहले हम थोड़ा डायग्राम एक बार देख लेंगे. ठीक है. तो अब देखो, these are the epitopes, what we can say, these are the antigens. तो एंटीजेंस के ऊपर में एपिटोप्स रहता है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके एंटीबॉडी है, लेट अस टेक एंटीबॉडी ऑफ IgM टाइप व्हिच इज पेंटामर. उसमें ऐसे पेंटामर होता है, मतलब 5 जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं एंटीबॉडीज के वो रहते हैं. तो एक साथ देखो, एक साइड में एक एंटीजन के साथ इसने बाइंड कर लिया और दूसरे साइड में दूसरे जो एपिटोप्स के साथ एंटीजन के जो एपिटोप्स है उसके साथ बाइंड कर लिया. तो एक साथ दो सेल के साथ ये बाइंड कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे बाइंड कर लिया इसके साथ. सो दिस इज द वे इट इज एक्चुअली बाइंडिंग. The antibody is getting binding, it's actually binding with the antigen. अब ये जो एंटीजन है इसको एंटीबॉडी कैसे इनएक्टिवेट कर देता है, इसके काफी सारे प्रोसेसेस है. ठीक है, काफी सारे मेथड्स है. ठीक है. पहला है डिफरेंट वे. सी बेसिकली द एंटीबॉडी कैन इनएक्टिवेट और बेसिकली इनएक्टिवेट द एंटीजन विद डिफरेंट वेज, बाय डिफरेंट वेज. तो हम डिस्कस करेंगे कि करके. पहला, by agglutination. Agglutination मतलब क्या है? Clumping of microorganism or blood cells typically due to an antigen-antibody reaction, and that is called agglutination. तो क्या कर देगा ये? पहला है ये एंटीबॉडी, हमने भी देखा थोड़ी देर पहले कि एंटीजन के साथ बाइंड करके एक सेल के साथ दो सेल को एक ही एंटीबॉडी बाइंड कर सकता है. इस तरह से जो एंटीजन के बहुत सारे जो सेल्स है which will bind together and it will form a क्लम्पिंग. ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्लम्प बना देता है. तो इससे भी क्या करेगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट कर देगा. नेक्स्ट, नंबर 2, ऑप्सोनिजेशन और एडहेरेंस. नेक्स्ट है ऑप्सोनिजेशन और एडहेरेंस. इसमें क्या होगा, दी एंटीजन, ठीक है, सच एज बैक्टीरियम इज कोटेड विद एंटीबॉडीज दैट एनहांस द फेगोसाइटोसिस. अब ये क्या होगा कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया ले लेते हैं, उसके जो एपिटोप्स है उसके साथ बहुत सारा ये एंटीबॉडी, मैक्सिमम जो एंटीबॉडी वो बाइंड कर जाएगा. इससे क्या होगा, इट विल एक्चुअली इंक्रीज द चांसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया. ठीक है. सो बाय दैट आल्सो इट कैन इनएक्टिवेट द एंटीजन. सो द मेकिंग द माइक्रोब्स मोर susceptible to phagocytosis is known as opsonization. अब जितना ज्यादा एंटीबॉडीज उसके साथ बाइंड करेगा उतना ही ज्यादा चांसेस है कि उसको जो हमारे बॉडी के फेगोसाइटिक सेल्स है उसको रिकॉग्नाइज कर ले और उसको टारगेट बनाए. ठीक है. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑप्सोनिजेशन. और ये जो एंटीबॉडीज है इसको हम कॉमनली कह सकते हैं ऑप्सोनिन्स. ठीक है. ये सिग्नल भेजता है और ये जहां पे ज्यादा रहेगा, जहां पे जिस एंटीजन के ऊपर सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज रहेंगे तो फेगोसाइटिक सेल्स विल हैविंग मोर एफिनिटी टुवर्ड्स दैट. ठीक है. नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होता है? फेगोसाइटिक सेल्स इंजेस्ट द agglutinated microbes more readily. ठीक है. Likewise, the soluble antigens may come out of solution and form a more easily phagocytized peptide when cross-linked by antibodies. ठीक है. मतलब ये अभी हमने देखा जो क्लम्प बना देगा एग्लूटिनेशन करके, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा एंटीबॉडीज का. इससे क्या होगा, जो फेगोसाइटिक सेल्स है इनको they are having this phagocytic cells, it will be easy for the phagocytic cells to actually attack these antigens and get the attack the antigens and make them inactivate. Okay. Next is neutralization. ये क्या होता है? The reaction of the antibody with the antigen blocks or neutralizes some bacterial toxins and prevent the attachment of some virus to the body cell.
तो जब ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच हो जाएगा, सो इससे और क्या फायदा हो सकता है? इट कैन ऑल्सो स्टॉप द बैक्टीरियल टॉक्सिन and it can sometimes also prevent to attach the viruses to the cell body. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली एक रिसर्च में ये पाया गया है कि there are certain parts in the कोरोना वायरस, आपने देखा होगा जो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर होता है, तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कोरोना वायरस एक ऐसा स्फेरिकल है और उसके बॉडी के चारों तरफ आप देख सकते हो ऐसे स्पाइक जैसे ऐसे स्ट्रक्चर निकले हैं, इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। सो ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है ना, बेसिकली जो है आरबीसी में जाके, ह्यूमन आरबीसी में जाके वहां पे जाके ये बाइंड करता है, ठीक है। बेसिकली ये ह्यूमन आरबीसी के साथ बाइंड करता है, लेकिन because we are having special type of antibody, especially in some particular blood group, that is particular blood group that is B and AB, तो इससे क्या होगा, वो जो particular blood group है, it is preventing, because it is this antibody is getting bind and it is preventing to bind this coronavirus with the RBCs, तो human जो सेल है, बॉडी सेल, उसके साथ बाइंड करने में रोकता है। So that is one example। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या कर सकता है कि कुछ वायरसेस को भी हमारे जो बॉडी के सेल्स है उसके साथ अटैच होने से भी ये हमें बचा सकता है, रोक सकता है। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि देखो, वायरस अगर एक बार हमारे बॉडी सेल में चला गया, सो इट विल टेक द कंट्रोल ऑफ इट एंड इट कैन मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। तो वो नहीं कर, वो हम उसको हम रोक सकते हैं बाय दिस मेथड, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। Next is lysis. Lysis क्या होता है? Some powerful antibodies attack the plasma membrane of the cell and thereby causing the rupture of the plasma membrane and allowing the escape of the cell content, and it's called lysis. Lysis का simple मतलब होता है destroy करना, तो cell membrane को destroy कर देते हैं, ठीक है? Fine. Now next is lymphoid organs. देखो, in case of the human immune system, it consists of lymphoid organ, lymphoid tissue and the soluble molecule like antibodies. अभी जो lymphoid organs है और tissue है, these are the main important structures which provide us the immunity, which help us to have the immunity inside our body. So the immune system recognizes the foreign antigen, respond to this and remember them, and this system also play an important role in allergic reaction, autoimmune disease and organ transplantation. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका lymphoid organs, जो इस सारे काम में हमें हेल्प करता है, ठीक है। So there are types of lymphoid organs are there. First is primary lymphoid organ, second is secondary lymphoid organ. So primary lymphoid organs के बारे में हम बात करेंगे और secondary lymphoid organs के बारे में भी हम बात करेंगे। पहला है primary lymphoid organs. See, the primary lymphoid organs are those organs which actually where the T lymphocytes and the B lymphocyte mature and they get mature and acquire their antigen specific receptors, ठीक है। तो maturation जहाँ पे होता है T और B lymphocytes का, उसको हम बोलते हैं primary lymphocytes, and after the maturation the lymphocytes migrate to secondary lymphoid organs. maturation के बाद ये जो आपकी T and B lymphocyte को कहाँ चले जाते हैं? They migrate to the secondary lymphoid organs. Now the primary lymphoid organs का example अगर हम देखेंगे, these are bone marrow, thymus. These are the examples of the primary lymphoid organs, ठीक है। तो बोन मैरो क्या है? तो बोन मैरो हमें पता है it is the main lymphoid organ which where all the blood cells including the lymphocytes are formed, ठीक है। and the maturation of the B lymphocyte occurs in the bone marrow itself. Then thymus के बारे में बात कर लेते हैं। it is the site of T lymphocyte maturation. thymus जो है, यहाँ पे क्या होता है, जो T lymphocyte का maturation वो thymus पे होता है। then thymus is situated near the heart. thymus का लोकेशन हम सबको पता है, and thymus is quite large in size, ये हमें पता है during the time of birth and
इसका साइज धीरे धीरे घट जाता है जब हम जितना हम बड़े होते जाते हैं, हमारा एज जितना बढ़ता है उस हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर इसका ये घट जाता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या है? सी आफ्टर द मैचुरेशन बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? इट माइग्रेट वाया ब्लड्स, कहाँ चले जाते हैं? via the blood vascular system and the lymphatic system to the secondary lymphoid organs, ठीक है। अब ये मैचुरेशन के बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चले जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं? इट अंडरगो proliferation एंड डिफरेंशिएशन। वहां पे क्या होगा? इसका नंबर इंक्रीज होगा और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। Now the acquired immune response to antigen usually develop in these organs। तो acquired immune response जो है और acquired immunity है जो वो कहाँ से बेसिकली कंट्रोल होता है? दैट इज एक्चुअली immune response to the antigen usually develops in these organs and become effector cells। Now in the secondary lymphoid tissue, in the secondary lymphoid tissues, the lymphocyte do not remain and move from one lymphocyte organ to another through the blood and the lymph, okay। Now the secondary lymphoid organ are lymph nodes, spleen, tonsil। secondary lymphoid organ क्या होता है? lymph nodes होता है, spleen होता है, tonsil होता है। These are the example of the secondary lymphoid organs। Now Peyer's patches of small intestine and mucosal associated lymphoid tissue, MALT, ये भी क्या है? These are the also example of the secondary lymphoid organs, ठीक है। सो lymphoid जो secondary lymphoid organs है उसके क्या क्या example है? lymph nodes है, spleen है, tonsils है, Peyer's patches है, then mucosal associated lymphoid tissue, all this। तो हम एक एक करके बात करते हैं। lymph nodes, we know about the lymph nodes, these are the small solid structure found at intervals along the lymphatic system। तो हमें lymph nodes के बारे में पता है, we have already discussed about the lymphatic system in the chapter of body fluids and circulation, so you have all the idea about the lymph nodes, so I'm not discussing further। Next, spleen is also we know it's an organ and it is very important, and it's a bean shaped organ which is the largest single mass of the lymphoid tissue in the body। तो lymphoid tissue का सबसे बड़ा अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे बॉडी में तो वो क्या होता है? वो स्प्लीन होता है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, टॉन्सिल्स इट यूजुअली जब हमने डिस्कस किया था डाइजेशन तो उसमें आपने पक्का पढ़ा होगा कि टॉन्सिल्स कितना होता है? देयर आर 6 टॉन्सिल्स, दैट मीन 3 pairs of tonsils are present and they act as a filter to protect the body from the bacteria and aid in the formation of white blood cells। white blood cells को बनने में हेल्प करता है और क्या करता है? जो बॉडी में बैक्टीरिया है उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, Peyer's patches। Now these are clusters of lymph nodes found in small intestine। small intestine में भी हमें जो lymph nodules है, lymph tissue है, वो हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं Peyer's patches, ठीक है। और ये कहाँ पे स्पेशली हमें मिलेगा? along the ileum side और ileum region में हमें ये Peyer's patches और ये टिश्यू मिलते हैं, जिसका काम है जिसमें क्या है? lymphoid tissues होते हैं, वो क्या करता है? lymphocytes बनाता है। नेक्स्ट है म्यूकोसल एसोसिएटेड lymphoid टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं MALT, mucosal associated lymphoid tissues। Now this MALT are significant aggregation of lymphoid tissues, ठीक है। कहाँ पे होता है? which are seen in relation to the mucosa of the major tracts like respiratory, alimentary canal and urogenital tracts। कहाँ पे होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो सकता है, होता है एलिमेंट्री कनाल में, और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट जो आपका किडनी से जो निकल के सीधा आपकी यूरिनरी ब्लडर तक जाता है ना, वहां से फिर बाहर की तरफ जाता है थ्रू दी यूरिथ्रा, तो दैट इज कॉल्ड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, वहां पे भी होता है। तो कहाँ होता है? एलिमेंट्री कनाल में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है MALT, एंड कहाँ पे होता है? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। इट constitute about 50% of the lymphoid tissue in human body। This is very very interesting।
ये जो MALT है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में जो लिम्फोइड टिश्यूज हैं उसका 50% जो है दैट इज एक्चुअली present, 50% is present is in the mucosa associated lymphoid tissue. This is very interesting point, and it can come in the examination as well, so you need to remember this. Now what they do actually क्या करते हैं ना, they do not serve as filters of lymph. ये ना मतलब जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कुछ जो है बैक्टीरिया को फिल्टर करते हैं, तो ये फिल्टर का काम नहीं करता, ठीक है। फाइन, नाउ इनका काम क्या होता है बेसिकली, और इस मतलब ये जो MALT होते हैं, जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसमें हमें क्या मिलेगा, ये करता क्या है बेसिकली ये लिम्फोसाइट प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और क्या कर सकता है, और क्या करता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, उसके बाद फेगोसाइटिक मैक्रोफेजेस, उसके बाद डेंड्राइटिक सेल्स, ये सब इसमें रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द lymphoid organs. So I will show you a diagram and a figure. So if you see, these are the different regions of the lymphoid organs in our body. So let us discuss one by one. So this is the these palatine tonsil. तो यहाँ पे tonsil का जो location वो ये होता है. Then we can see this right lymphoid duct. It is there here. Then thoracic duct. Then thymus is present here. Then the spleen is present here. Then small intestine. Then aggregate of lymphoid foliage. It is there. Then nodes. Then lymphatic vessels. Then red bone marrow. ठीक है, large intestine, appendix. Then lymphatic vessels, thoracic duct. Then cisternal child. See, so these are the area which is marked in this diagram, where you can see the different this diagram, no need to draw this diagram, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप देखिए, इसको थोड़ा रेफर करने के लिए आप कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। Now next is, this is the diagram of the tissue that is called mucosal associated lymphoid tissue, और MALT। तो mucosal जो associated lymphoid tissue है, उसका डायग्राम, उसका अगर TS सेक्शन अगर हम देखेंगे, और नहीं TS सेक्शन नहीं, अगर हम उसका डायग्राम बेसिकली अगर देखेंगे, तो बेसिकली इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है, ठीक है। और हमने अभी देखा ना, ये कहाँ रहता है, ज्यादातर कहाँ पे है, ये एलिमेंट्री कनाल में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, तो इसीलिए हमें देखो यहाँ पे ल्यूमन कॉमन मिलेगा, ठीक है। Then after that what we can see, these are villi are also present. Then if you see, their muscular layer is present, then submucosa, then lymphoid follicles. You can see these are the lymphoid follicles, and then lamina propria, this is the layer, ठीक है, हमने वो डिस्कस भी किया है पहले, आपको पता होगा। And these are all inside, in between these structures, this in between this this lumen, this lamina propria and the muscular layer, present is the lymphoid follicles, ठीक है। So this is the basic structure of Peyer's patches. Fine. So this is all about the lymphoid organs. There are different types we have discussed. Now the next topic that we are going to start, that is your vaccination and immunization. So today I will just give you the definition of the vaccination or vaccine, and the next class onwards, next class onwards, we'll discuss the vaccination immunization in detail. तो देखो, पहला है वैक्सीनेशन, हम कहते किसे हैं, वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ एटेन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड, एटेन्यूएटेड मतलब हाफ किल्ड, और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस और एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन which is taken orally or injected to provide immunity for that pathogen, ठीक है। सो अभी मैं जो डेफिनेशन कह रहा हूं, you please listen carefully and write it properly. So I'm repeating this again. Vaccine is suspension of attenuated or inactivated pathogens or antigenic protein of pathogen which is taken orally or injected to provide immunity for that pathogen.
and that is called this is called vaccination. Okay, first जो वैक्सीनेशन और हम जो कह सकते हैं फादर ऑफ इम्यूनिटी हम जिन्हें कहते हैं वो है एडवर्ड जेनर, EDWARD, एडवर्ड जेनर, JENNER इन 1796. ठीक है, he first time noticed that mankind did not suffer from smallpox but they had scabs of cowpox. ठीक है, so what he did, he transport the material from sore of the milkmaid who was suffering from the cowpox to the young boy of 8-year-old, and after some time he injected the live smallpox material into that boy, but symptoms of disease did not appear, and he tried he tried this produce on other person and got the same result. Okay, and that was the starting point, or that was the start of vaccination. This is the way the vaccine started, or vaccination started. Other scientists like Louis Pasteur, he discovered the process of inactivating the pathogens and prepared the vaccine for chicken cholera, then anthrax, rabies, etc. Another scientist, von Behring, 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 and he discovered the process of passive immunization and prepared the anti-diphtheриal serum, ADS, जिसको हम commonly कहते हैं ADS, anti-diphtheриal serum, by injecting diphtheria antigen into sheep के बॉडी में उन्होंने इंजेक्ट कर दिया और उससे उन्होंने कलेक्ट किया था. So von Behring is known as father of passive immunization. और father of immunity हम किसको कहते हैं? एडवर्ड जेनर. and the father of passive immunization is known as von Behring. Okay, so in the next lecture we will continue with this vaccination, immunization. Then also we will discuss the different types of disorder related with the immune system, like allergies, autoimmune disorders, then immunodeficiency diseases like your AIDS in detail. Then we will discuss cancer. Okay, and by that we can finish this part. So till then, take care, stay at home, be safe. Thank you.